Hello my dear students of Standard 8. Welcome to all in today's online class. My dear friends, it is known to all of you that we have completed all the chapters related to Term 1. Dear friends, Term 1 examination date and seat will be announced in very short period of time. It means the examination is coming soon. So dear friends, all of you must revise all the chapters properly whichever you have completed so far. So dear friends, we have just started revision process and there was only one video regarding the revision process which you have seen. I hope all of you have seen that video and you have got some information, some special knowledge which were included in the video. So dear friends, today we are going to revise, we will continue the same chapter that we have selected for the revision process, that is chapter 4, materials, metals and non-metals. This chapter will be continued in the revision process. During revision process we will continue this chapter. After making revision in this way, we will move in another chapter that we have which we have to revise for the term 1 examination purpose. So dear friends, learn all the contents clearly. Let us recall the contents, let us recall all the materials which you have learned in my previous video. So dear students, and I have explained about the electronic concept of metals and non-metals through which you can categorize the materials, metals and non-metals by using the electronic concept. So what is the electronic concept stands? What is the real meaning of the electronic concept? So electronic concept, it means the arrangement of electrons in the definite orbit on cell. So dear friends, I have taught you how to describe, how to arrange the electron in the orbit. How can you arrange the electron in the orbit? By using the formula that is 2n square. 2n square, where n is the number of the cell, yeah, orbit, you can say the orbit through which you have to fill up the electron. So dear friends, let us see that how can you fill the electron. It means where n is the number of cells. So first of all, you will require the atomic number of the elements, okay, which you want to categorize the elements into metals and non-metals. So first of all of you have to require the atomic number, constant atomic number. That is the very requirement and needed. So first of all, read about that. How can you find out the atomic number? Suppose that atomic number that is just like a ऑक्सीजन, ओके. सो ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर पता है. ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? O. सिंबल इज O एंड एटॉमिक नंबर दैट इज 8. सो एटॉमिक नंबर इज 8 हियर इज द ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. इसको आप कैसे अरेंज करोगे, कैसे आप इसको फिल करोगे इन डिफरेंट सेल्स, जस्ट लाइक ए K सेल्स, ओके. L और M और N सेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे. So K is the first cell, L is the second cell, M is the third cell and N is the outermost last cell, that is 4 cells. So first of all, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है फिल करने के लिए. So first of all you will fill 2 electron because on the first cell, that is K cells, you will put that 1 square because we are filling the electron in the first cell. So it means you will substitute here 1 square, that only will give 1. 2 1 2, that is 2 electron. So there are 8 electron which you have to fill. It means there are 6 electron are still unfilled. So you have to fill the 6 electron in the next concerned cell, that is the L cell. So you will fill there 6 electron. So you will fill the 6 electron here. So as you are looking that there are 6 electron present in the outermost cells because 2 is the full cell. This is the K cell, that the 2 electron you have filled already. And you have to fill the 6 electron in there. 6 electron in there, dear students. 6 electron in there. It means 1 2 3 4 5 6. So you have to show like that electrons are rotating. So 6 electron are there. 6 electron are there. So there is a nucleus. Inside neutron and proton reside in the nucleus. As you are looking that this is the outermost cell, that is the K cell. L cell. And this is the K cell. So electron, there are 6 electrons present in the outermost cells. Outermost, that is the valence cell. It is known as the valence cell and outermost cells. As you are looking that there are 6 electrons. So I have told you that if electrons 1 2 3 are found in the outermost cells, all the elements will be considered as the metal. So as you are looking that there are 6 electrons
which are greater in number in comparison to 3, it means we will classify that oxygen is a non-metal, and in that case as you are looking that 2 electron will be accepted by the metals, by the oxygens. So here we are looking that 2 electron will be gained by the oxygens. In that way we can say that electron donor are metals and electron acceptor are the base. So here electron will be accepted by the oxygen. So that's why we can say that oxygen is a non-metal. While any elements, why does elements donate electron or gain electron, lose electron or gain electron? What is the reason behind it? To get the stability. Because 2, 8, 18 and 32 structures found in outermost cells, electron will be considered as the element will be considered as the most stable element. Just like we have to take the example of the inert gases, inert gas which are known as the noble gases. So noble gas, inert gas की बात करें, if you are talking about the inert gas, you will find that the whole structures, whole configuration is stable. So all the elements just want to have the same electronic configuration, just like inert gases, because inert gas do not react with other gases, just like helium, okay, neon, argon, okay, krypton, xenon and radon. So as you are looking that student, these are the symbol of the noble gases written in that way. So you can see that this is the electronic configuration to heliums, and neon is 10, 18, okay, 36, 54, okay, and 86. So as you looking that here is a electronic. If you talk about the neon, you have to distribute the electron in k element cell. If you have to distribute the electron of neon in different cells, just like k element cells, you will find that electrons are totally, you will find there that electrons present in the outermost cells are in the इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स 2, 8, 18 और 32 टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा. जैसे देखिए यहाँ पे नियॉन दैट इज 10, you have to fill. So it means 2 will be filled in the first cell, that is the K cell, and now you have to move towards the L cell. You have filled 2 electrons. It means 8 electrons are still to be filled, that will be filled in L cell. You have to fill, here is 8 electron will be filled in the L cell. So as you are looking that L is the outermost where electron is 8, and you are finding that 2, 8, 18 and 32 is the most stable. अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 2, 8, 18 और 32 का स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है, तो वो क्या होता है कि मोस्ट स्टेबल होता है. इसमें एलिमेंट्स क्या है कि स्टेबल है, ये किसी से शेयरिंग नहीं करेगा, इसीलिए इनको नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फील्ड है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे भरते हैं. और मान लो कि जैसे क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का 17 है, ठीक है, इसमें 2 भरेंगे, 8 भरेंगे, 7 फिल करेंगे. तो यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट में यहाँ पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है. तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की. तो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड बाय द क्लोरीन, and that's why chlorine is a non-metal. And on the basis of presence of electron in the outermost cells, you can guess whether it is a metal or non-metal. So chlorine is a non-metal because there are 7 electrons present in the outermost cells, and therefore it will acquire 1 electron in the outermost cells. That is chlorine is a non-metal. So just like we are taking the sodium and chlorine, sodium and chlorine. सोडियम के outermost में कितना इलेक्ट्रॉन? 1. क्लोरीन के 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 electron will be completely transferred from sodium side to the chlorine side. That is why 1 electron will be completely transferred from sodium side to the chlorine side. That is why you are looking that sodium will acquire positive charge because sodium is losing the electron and chlorine is acquiring the electron. So it will possess negative charge. So positive and negative charge will exert each other and forms a types of bond that is known as the electrovalent bond. So electrovalent bond, electrovalent compound. So here is an electrovalent bond will be formed as you are looking that in case of the bond present in the sodium chloride. इसीलिए सोडियम क्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट? सॉलिड होता है. तो यहाँ पे आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं
वो आपके मेटल कंसीडर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड्स की बात आती है तो मेटलॉइड्स में जनरली आउटर मोस्ट सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन आपने देखा, जैसे कार्बन भी मेटलॉइड्स की सीरीज में आता है, सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम, निकल, कॉपर। तो इस तरह की बातें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे मेटलॉइड्स के केस में। तो मेटल और नॉन मेटल्स आप यहाँ पे अच्छे से पहचान सकते हो किस प्रिंसिपल पे, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल को क्लासीफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल को कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मेटल जितने होते हैं, मैलिएबिलिटी पाई जाती है प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी है, ठीक है, कंडक्टिविटी है, लस्टरस है, लस्टर, स्ट्रेंथ, सोनरस और हार्डनेस, ये सारी बातें आएंगी। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज द आउटर मोस्ट प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने देखा है। चलिए स्टडी करते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? मैलिएबल का मतलब है, इसको हिंदी में आघात वर्धनीयता कहते हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द टर्म्स मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी का मतलब है स्टूडेंट्स, वेन एवर वी हिट एनी मेटल्स विद अ हैमर, सो हैमर is used in hitting the elements, then metals can be drawn into thin sheet. It means metals में प्रॉपर्टी ये है कि metals पे हैमर मार करके, हैमर बड़े जो हैमर आते हैं, हथौड़ा, उसको बीट करेंगे तो वो थिन शीट में स्प्रेड हो जाते हैं। इट मीन्स मैलिएबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट्स, विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इन अ थिन शीट। जो थिन शीट में, पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सके, वो प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी। जनरली जो मेटल्स में आपने देखा कि मेटल्स आर जनरली मैलिएबल। क्यों मैलिएबल हैं? क्योंकि जब इस पे हम हैमर का अटैक करेंगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पतली पतली थिन फाइल्स तक में भी कन्वर्ट कर सकता है। बहुत हीट करोगे तो ये बहुत पतली स्ट्रिप बन जाएगी। तो मेटल्स जनरली आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब ही यही होता है। मैलिएबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आपने देखा मोस्ट ऑफ द मैलिएबल मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। आप देखिए गोल्ड और सिल्वर में जब हैमर अटैक करेंगे तो ये ज़्यादा शीट में फैलते हैं। और कॉपर और आयरन भी हैं, मैलिएबल हैं, ठीक है। एल्युमिनियम फाइल्स आपने देखा होगा, एल्युमिनियम एंड कॉपर आर आल्सो हाईली मैलिएबल। एल्युमिनियम मेटल्स कैन बी हैमर्ड टू अ थिन एल्युमिनियम फाइल्स। आपको जैसे खाना रैपर्स करने के लिए एल्युमिनियम फाइल्स आता है, तो एल्युमिनियम फाइल्स क्यों आता है, क्यों ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि एल्युमिनियम को बहुत थिन फाइल्स में भी कन्वर्ट कर सकता है हैमर्ड करके। इट मीन्स एल्युमिनियम इज यूजफुल देयर। इस तरह आपने देखा कि इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिएबिलिटी दैट मेटल्स कैन बी बेंट टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट और डिफरेंट शेप। इसीलिए मेटल्स के डिफरेंट शेप्स के जो स्ट्रक्चर हमको मटेरियल यूज करने के लिए मिलते हैं, इसीलिए मेटल्स के डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट शेप के मटेरियल हमको मिल जाते हैं। It means metals can be transformed into different figures. Okay, this is the very good property, malleability. Through malleability, we can transform the shape of the metal in different shapes by just bending. There is a bending property and there is a malleability. It means the metals can be converted into thin sheets by using hammer. मैलिएबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी कि मैलिएबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टर्म्स मैलिएबिलिटी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक नई प्रॉपर्टी आपकी आती है यहाँ पे, डक्टिलिटी। जैसे आपको अब नॉन मेटल्स को आपने देख लिया कि मैलिएबल हैं, लेकिन नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। नॉन मेटल्स मैलिएबल क्यों नहीं है भाई? क्योंकि नॉन मेटल्स पे जब हम हैमर का अटैक करेंगे तो नॉन मेटल्स कैन बी ब्रोकन इनटू थिन पीसेस। इट मीन्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल इन नेचर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटिल होते हैं, बहुत आसानी से फ्रेगाइल होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे आप कोल को देखिए, कोल, ठीक है, कार्बन दैट इज नॉन मेटल। कार्बन की केस में देखिए,
कार्बन पे जब आप कार्बन के वेरियस फॉर्म्स आर अवेलेबल देयर, कार्बन में जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, ठीक है। आप कोल देख लीजिए, कोल खुद ही कार्बन है, चार कोल है, इज द फॉर्म ऑफ द कार्बन। जब कोल पे जब हम लोग हैमर अटैक करते हैं तो कोल देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इट मीन्स द कोल इज नॉट मैलिएबल, उसको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज ब्रिटिल इन नेचर। ग्रेफाइट देख लीजिए जो पेंसिल में भरा होता है, इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉपर, कॉपर के फॉर्म में है आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पे भी जब हम लोग अटैक करते हैं तो ग्रेफाइट भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है पीसेस में। इट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू transforms the non-metals into thin sheet by beating. So from these discussions we conclude that we cannot obtain thin sheet by beating non-metals. Non-metals को thin sheet में convert नहीं किया सकता है by beating. When beaten with the hammers, solid metals break into pieces, solid non-metal, and this property due to which non-metals are break on hammering is called brittleness. इसलिए इस प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि नॉन मेटल्स जो हमारे होते हैं वो ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल का मतलब होता है विच कैन बी ब्रोकन इजिली, ब्रिटिल, ठीक है। फ्रेगाइल, बहुत जल्दी आसानी से टूट जाने वाले, उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिल। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स में देखा कि मेटल्स तो मैलिएबल हैं लेकिन नॉन मेटल्स हमारे मैलिएबल नहीं है, तो इस प्रिंसिपल पे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन मूव्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में यहाँ पे आप देखे हो कि डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को थिन शीट में अभी आपने मैलिएबल देखा। डक्टिलिटी में क्या होता है कि द मेटल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू थिन वायर, इसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो वायर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आता है यूज, वायर, ठीक है, घरों में जो यूज करते हो आप वायरिंग, ठीक है। तो वायरिंग स्टूडेंट्स वायर में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है मेटल को, मेटल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वायर। कौन सी प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स विच अलाउज इट टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। एक पतली वायर में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आपके घरों में ज्यादातर यूज देखिए कॉपर वायर को, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर मेटल्स को इजिली वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, आयरन को भी किया जा सकता है, कॉपर वायर घर में ज्यादा यूज होती है, सिल्वर को भी किया जा सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नॉन मेटल्स और नॉट डक्टाइल्स, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है, दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दैट इज व्हाई नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इसको थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे फास्फोरस को आप करोगे तो थिन वायर्स में स्मॉल पीसेस में टूट जाता है, तो वायर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? आपने देखा कि नॉन मेटल्स आपके फ्रेगाइल होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, तो इसलिए नॉन मेटल्स को हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन मोस्ट टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है आपकी, कंडक्टिविटी यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है कि विच अलाउ प्रॉपर्टी विच अलाउज टू ट्रांसफॉर्म हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज द कंडक्टिविटी रिफर्स। कंडक्शन किसका? कंडक्शन हीट का। हियर वी आर जनरली वी कैन illustrate this phenomena with the help of an experiment. We can do an experiment, we can do an activity to justify. कंडक्टिविटी का मतलब है जैसे आप सिल्वर के स्पून ले लीजिए, ठीक है, सिल्वर स्पून, उसको हॉट वाटर में डाल दीजिए, तो आप देखोगे कि जहाँ पे आप होल्ड किए हो सिल्वर स्पून को, तो वहाँ पे भी आपको देखोगे कि हीट दूसरे इंड तक पहुँच जाएगी, ठीक है। इससे क्या है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उसमें हीट वन इंड से अनदर इंड तक आ रही है। इट मीन्स वी कैन से दैट द मेटल्स विच अलाउ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैसे कंडक्शन नॉन मेटल्स में होता है और मेटल्स में नहीं होता है? तो ये तो आपने देखा कि इंसुलेटर होते हैं और कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर की केस में जितने भी मेटल्स आते हैं, जनरली मेटल्स आर द कंडक्टर। जितने भी इंसुलेटर आते हैं वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। वो एक्चुअली क्यों होते हैं नॉन मेटल्स और क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में एक जो अरेंजमेंट है, गैपिंग पाई जाती है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अगर ये हमारा, ठीक है, ये
तो ये अगर मान लो वैलेंस बैंड है, दिस इज द वैलेंस बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच देखिए गैप है, ये दिस इज द गैप, बैरियर, एनर्जी गैप, ठीक है, देयर इज एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच में देखिए एनर्जी गैप है, दिस इज द बैरियर। अब इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तभी तो कंडक्शन होगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन आप इसमें देखिए गैपिंग बहुत कम होती है। इन केस ऑफ द मेटल्स में, इन केस ऑफ द मेटल में जो गैपिंग होती है बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, देयर इज अ लीस्ट गैप, ओके, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन इजीली jump from the valence band to the conduction band, and thus electricity, conduction of electricity and heat can be easily seen in case of the metal. लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होता है, गैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, देयर इज अ मैक्सिमम गैपिंग फाउंड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, दैट इज अ मैक्सिमम गैपिंग। जैसे ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, तो ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया। तो इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होती है बहुत ज़्यादा होती है, बैरियर गैप बहुत ज़्यादा होता है, इससे इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे नहीं आ पाते, और इसलिए क्या है कि इससे इलेक्ट्रॉन का बैरियर गैप इतनी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जंप करने के लिए। तो इससे क्या है कि नॉन मेटल्स में, ये नॉन मेटल का केस बता रहे हैं, दिस इज द नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग पाई जाती है, बैरियर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इससे इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे नहीं आ पाते, और इसलिए कंप्लीट कंडक्शन नहीं हो पाता हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दैट्स वाई वी हैव क्लासिफाइड इंसुलेटर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एनर्जी गैप बैरियर, टू विच वी कैन क्लासीफाई दिस वन। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडक्शन का मतलब जैसे आपके घरों में यूज होती है वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वायर होती है। तो सबसे बेस्ट दैट इज द सिल्वर वायर, ओके, बट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इट इज़ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट प्राइस होता है, इसलिए ज़्यादातर हम इसको यूज नहीं करते। ज़्यादातर कॉपर वायर यूज करते हैं घरों में, कॉपर और सिल्वर वायर, वी यूज द कॉपर एंड सिल्वर वायर एट होम, ओके। गोल्ड, एल्युमिनियम एंड आयरन मेटल्स आर गुड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थ्रू ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, जबकि ऑल मेटल्स भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर यहाँ पे आप देख सकते हो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और एल्युमिनियम भी है, तो इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे। एल्युमिनियम फाइल आपको आसानी से मिल जाएगी। एल्युमिनियम फाइल को जैसे आप यहाँ रख लीजिए, जैसे द बैटरी, अगर मान लो इसका सेल है, यहाँ पे टर्मिनल है, ठीक है, आप इसका वायर ले गए हो यहाँ पे, और यहाँ पे एक बल्ब लगाए हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है कट, यहाँ पे आप एक लगा दीजिए एल्युमिनियम, वो फाइल लगा दीजिए, किसकी, एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम फाइल, एल्युमिनियम फाइल लगा दीजिए यहाँ पे स्ट्रिप पे। ये वायर है आपकी, ठीक है, दिस इज द वायर एंड यू हैव कनेक्टेड द बैटरी टर्मिनल्स, दिस इज द सेल, ठीक है, एक सेल आपने लिया है, इसके दोनों टर्मिनल से आपने वायर को जोड़ा है, और यहाँ पे एक वायर का कनेक्शन, और इसको आपने बल्ब से जोड़ा है, और यहाँ पे आपने लगा दिया एल्युमिनियम फाइल। तो एल्युमिनियम फाइल को कनेक्शन तो होगा ही, ठीक है, एल्युमिनियम इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो बल्ब स्टार्ट टू ग्लो, बल्ब जलना शुरू हो जाता है, बल्ब स्टार्ट टू ग्लो, बल्ब तुरंत ही बर्निंग ग्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग लगाए हुए हैं, दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। So we can prove this one and we can prove this one, and if one times aluminum foil is replaced and we have to use the आयरन की यूज कर लें, ठीक है, तब भी ये चलेगा, ठीक है, सिल्वर यूज करते हैं तब भी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जनरली जितने मेटल्स होते हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दैट्स वाई दिस इज द कंडक्टिविटी। नॉन मेटल्स में आप देखोगे कि ना, लेकिन नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन केस है। नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट, दैट इज द नॉन मेटल्स इज द फॉर्म ऑफ द कार्बन एंड विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। लेकिन नॉन मेटल्स में आपने देखोगे कि नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट, ओके, सल्फर नॉन मेटल्स है, वो कंडक्ट नहीं करेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ओके।
लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केवल ग्रेफाइट नॉन मेटल के केस में कार्बन का जो फॉर्म है वही केवल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वन क्लियरली, because there is an exceptional case in case of the non-metals. Generally all the non-metals are bad conductor of heat and electricity, but there is an exception. exception का मतलब एक अपवाद है जिसमें non-metals के केस में ग्रेफाइट which is the good conductor of electricity and heat as electricity, but it is a form of the carbon. ये कार्बन का फॉर्म होता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, कार्बन 60. There are various form of the carbons you can found. Next one moves towards the property that is luster. अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी आपकी आती है लस्टर। लस्टर प्रॉपर्टी को भी हम लोग देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लस्टर प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जा सकता है। लस्टर का मतलब दैट इज शाइनिंग प्रॉपर्टी, शाइनिंग नेचर्स। जैसे जितने भी ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी के मटेरियल्स बनाए जाते हैं, वो सब जैसे गोल्ड सिल्वर के बनाए जाते हैं, क्योंकि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो लस्टर होते हैं। गोल्ड सिल्वर के क्यों बनाया जाता है? क्योंकि गोल्ड सिल्वर कैन बी ट्रांसफॉर्म इजिली इन द डिफरेंट शेप्स। ओके, इट कैन बी गोल्ड और सिल्वर दैट इज द हाईली वैल्यूएबल। गोल्ड और सिल्वर आपके हाईली वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए जितने भी ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाई जाती हैं वो सब गोल्ड और सिल्वर प्रीफर किया जा सकता है। दैट इज द, इसी प्रॉपर्टी पे ये ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो लस्टर का मतलब है कि शाइनिंग प्रॉपर्टी, जितने भी मेटल्स होते हैं वो लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। लस्टर प्रॉपर्टी शो करने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है, मेटल्स में। तो इलेक्ट्रॉन जब हम उसको धूप में रखते हैं तो आप सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सरफेस एंड इनर ऑफ इट्स देयर इज अ बैंड गैप आल्सो, एनर्जी बैरियर एंड व्हिच इज लीस्ट इन गैप। बहुत सारे गैप होते हैं, एक बैंड कंप्लीटली बनता है तो बहुत सारे इसमें एनर्जी गैप बैरियर, जो मैंने आपको बताया था थी, गैप बहुत सारे होंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के केस में, तो ये सरफेस पे जब इस पे लाइट पड़ेगी, हीट रेडिएशन जब इस पे पड़ेगी, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले हैं, इट मीन्स कंडक्शन बैंड वाले, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, ओके, एंड कम टू द सरफेस एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिट्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, ये सरफेस इलेक्ट्रॉन के मेटल के सरफेस से बहुत सारे ह्यूज एनॉर्मस इलेक्ट्रॉन इमिट एट सेम टाइम आफ्टर एक्वायरिंग द एनर्जी heat from the radiation of the heat sunlight when light falls on that due to the photosynthetic reaction. So electron will come in the upper surface and the huge enormous electron will emit simultaneously within same duration of time by creating spark. Okay, sparking will create due to the sparking and इस तरह के स्पार्क से हम लोग क्या देख लेते हैं कि जो मेटल हमारे होते हैं वो लस्टर होते हैं। और नॉन मेटल्स में जब लाइट पड़ेगी तो नॉन मेटल्स जनरली आर डल, ओके, नॉन मेटल्स आर डल होते हैं, नॉन मेटल्स आपके डल होते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करते, शाइनिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करते। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, दे आर डल, दिस मीन्स दैट द नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनिंग, दे आर डल इन अपीयरेंस। सल्फर एंड फास्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल्स विच आर नॉट हैव द लस्टर शाइनिंग, दे आर डल इन अपीयरेंस। आयोडीन इज नॉन मेटल्स हैविंग लस्टर। लेकिन इसमें एक ऐसा एक्सेप्शन केस आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी कंडक्टिविटी की बात की थी, तो कंडक्टिविटी में आपने देखा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शंस में आपने देखा कि ग्रेफाइट तो होता है। एक्सेप्शन केस दैट इज नॉन मेटल्स एंड द फॉर्म ऑफ द कार्बन इन देयर इज। अब हम यहाँ पे लस्टर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो लस्टर प्रॉपर्टी में आपको आयोडीन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आयोडीन विच इज अ नॉन मेटल, ओके, बट इट आल्सो हैज शाइनिंग प्रॉपर्टी, दैट इज द लस्टर, चमक इसमें भी है। आयोडीन है शाइनिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ द मेटल। आयोडीन के पास भी शाइनिंग सरफेस है जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में होता है। तो इट मीन्स एक्सेप्शन केस जिसे आपको याद रखना है, जैसे अपवाद होता है एक्सेप्शन केस, तो आयोडीन के केस में हमने देखा कि आयोडीन के केस में भी शाइनिंग प्रॉपर्टी है, लस्टर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो दिस इज द एक्सेप्शन केस, यू हैव टू रिमेंबर दैट वन। नेक्स्ट वन मूव्स टुवर्ड्स द टॉपिक दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो जनरली जो मेटल्स होते हैं मेटल्स उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ मतलब कि जैसे आपने देखा स्टेनलेस स्टील, ठीक है, उसमें आयरन, कार्बन, ठीक है, निकल थोड़ा सा मिला दें, क्रोमियम, निकल, आयरन, तो इससे क्या है कि वो एक स्टेनलेस स्टील बन जाती है, दैट इज हार्ड।
हार्ड स्टील जिसकी बात कर रहा हूँ कि हाँ स्टील बॉडी, जैसे कहते हैं ना कि स्टील बॉडी, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। जैसे आपने देखा है कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर मेटल का यूज होता है, दैट इज द आयरन मेटल्स यूज होते हैं। ब्रिज के फॉर्मेशंस में, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग साइट्स, एवरीवेयर यू कैन फाइंड द मेटल्स यूजेस। सो मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इट मीन्स ये जल्दी से फैलते नहीं, टूटते नहीं, फ्रेगाइल नहीं है। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट शेपिंग विथ ब्रेकिंग। मतलब बहुत सारे टेंसाइल का मतलब है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है इनकी कि जल्दी से टूटते नहीं है। इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड, बहुत सारा लोड इसमें क्वांटिटी का इसमें सस्पेंस हो सकता है इसलिए, और ये इनका शेप चेंज नहीं होता है। मेटल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, बिल्डिंग्स, रेलवेज लाइन, गिrders, मशीन्स, व्हीकल्स एंड चेन्स। Most of the metals are strong but some of the metals are not strong. For example, जैसे आपने देखा कि जनरली मेटल तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शन केस आते हैं। एक्सेप्शनल केस में आपने देखा होगा कि जब हम मेटल के कैटेगराइज कर रहे थे तो मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सॉफ्ट मेटल भी होते हैं। सॉफ्ट मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको सीजर से काटा जा सकता है, नाइफ को यूज करके काटा जा सकता है, जस्ट लाइक केक जैसे हम लोग काटते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। सोडियम और पोटेशियम के टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, फैलने की क्षमता बहुत कम है, तो इट मीन्स सोडियम और पोटेशियम को यहाँ पे हम अलाउ नहीं करेंगे। नॉन मेटल्स जनरली नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये फ्रेगाइल होते हैं, टूट जाते हैं। ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग, it has low tensile strength, so when a large weight is placed in a graphite sheet it gets snapped or breaked। आप थेन शीट पे, ग्रेफाइट की शीट पे आप बहुत सारे लोड रख दीजिए तो ग्रेफाइट शीट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली नॉन मेटल्स, और अभी आपने क्या देखा कि नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं है, ठीक है। डक्टिलिटी की बात होती रही, तो क्योंकि इसमें फ्रेगाइल प्रॉपर्टी पाई जाती है नॉन मेटल्स में, जिससे वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी हुई लस्टर की, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात कर ली। सोनरस का मतलब है, मेटल्स जितने होते हैं वो सोनरस साउंड, सोनरस का मतलब होता है मधुर ध्वनि, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सोनरस प्रॉपर्टी। सोनरस के क्या है कि सोनरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। जैसे हम एक कॉइन को कहीं रूम पे गिरा दें तो कॉइन की खनक एक तरीके से आती है, और इस तरह मेटल्स जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक फोनेटिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मेटल्स हमारे सोनरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं। अगर टू बॉक्स आपके सामने रख दीजिए ऑफ द सेम अपीयरेंस, वन इज मेड अप ऑफ द मेटल एंड अनदर इज मेड अप ऑफ द नॉन मेटल्स, वुड की बना दी जाए, आपके सामने लाया जाए, तो यू हैव टू जस्टिफाई that which one is made up of the metal and which one is the made up non metal। तो आप उस पर डायरेक्ट हिट करोगे हैमर से या थोड़ा सा आप उस पर स्ट्राइक करोगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। उस साउंड की बेसिस पे हम बता सकेंगे कि कौन सा मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, दिस मीन्स दैट दे डू नॉट मेक ए रिंगिंग साउंड। कार्बन के पीस आप चारकोल को गिरा दीजिए जमीन पे तो वो कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स हमारे सोनरस नहीं है। हार्डनेस की बात कर ही ली हमने, यहाँ पे देखो हार्डनेस की बात कर ली अभी। तो हार्डनेस में जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सारी बातें अभी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो वी हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हार्डनेस की बात करूंगा तो जनरली मेटल तो हार्ड होते ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे आप एल्युमिनियम, ठीक है। मैंने बात की सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम पोटेशियम दैट आर द वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, किसी भी चाकू से आप उसको काट सकते हो। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स के केस में ये सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट, कुछ बहुत ही क्वाइट सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स, ओनली वन नॉन मेटल्स डायमंड्स इज वेरी हार्ड। अब डायमंड्स में बात करें कि डायमंड्स में भी एक्सेप्शनल केस है कि नॉन मेटल्स के केस में, जैसे मैंने बताया कार्बन के फॉर्म डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन 16। तो डायमंड इज द नॉन मेटल्स का एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, तो दैट इज द हार्डेस्ट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट,
कुछ मेटल्स भी क्वाइट सॉफ्ट होते हैं, सल्फर एंड फास्फोरस और सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी इजिली कट इनटू पीसेस विथ अ नाइफ। फास्फोरस और सल्फर को भी आप कट कर सकते हो, जैसे मेटल्स में आपने सोडियम पोटेशियम को देखा, उसी तरह नॉन मेटल्स को भी आप काट सकते हो। तो इस बेसिस पे हम बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। वी विल डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्क्राइब करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में। सो यू हैव टू रिवाइज ऑल द कंटेंट्स क्लियरली एंड गिवन इन द बुक and with the help of video discussion. So all of you have to prepare all the topic clearly. Thank you student for watching today's video.